Hello students, this is Tantri Sir's physics classes, and in the last lecture, eighth lecture of on this Newton's laws of motion, I discussed with you inertial and non-inertial frames of reference, in which I discussed what is inertial frame of reference and then what is non-inertial frame of reference. And that lecture I continue this. In this lecture I will continue with that, non-inertial and inertial frames of reference. I had given some examples there also, but I thought that it is advisable to continue the lecture for another 40 minutes. To recall that what we have done there, inertial frame of reference is one, a system, coordinate system, a bus or a car, which is at rest or moves with constant velocity. A non-inertial frame of reference is one in which you see a system, a coordinate system, or maybe a car or a bus which moves with acceleration, which is accelerating. And when you are in the accelerated frame of reference or in the non-inertial frame of reference, Newton's laws of motion are not valid. An observer in the non-inertial frame of reference observes an additional force. In the additional force on an object outside or maybe inside the system itself, and that force is equal to mass of that object multiplied to acceleration of the system in the opposite direction. ma, but in the opposite direction. Mass, it is mass of the object, and acceleration of the system, acceleration of the frame, that is ma, but that ma opposite to the acceleration of the system itself, acceleration of the frame itself, ma in the opposite direction. And once Newton's laws are not valid, but with this correction he can apply the Newton's law. Then he applies the Newton's law with this correction. The correction is pseudo force. The correction is this fictitious force, a pseudo force observed on the object by the observer inside, observed on the object in the opposite direction, opposite to his acceleration. That I have shown you, but I will repeat it here again. All inertial frames of reference are equivalent. Inertial frames may be a frame of reference moving with 4 meters per second. Another frame of reference, it moves 10 meters per second velocity. They are equivalent. All inertial frames of reference are equivalent. And all inertial frame of reference, in all inertial frames of reference, laws of physics are the same. You are in an inertial frame of reference, whatever may be its constant velocity, you will apply the laws of physics, and laws of physics are the same. I mean, in one frame of reference cannot be distinguished, cannot be different from another frame of reference, which is also inertial. 2 inertial frames or 3 inertial frames, they are all equivalent in all respects, and laws of physics are valid in all inertial frame of reference, and laws of physics are the same. Whatever is the law of physics, it is the same. But in non-inertial frame of reference, you have seen that we have to add some pseudo force to make the law of physics valid. We have to correct the Newton's law from the non-inertial frame of reference. Please mark them well and try to understand these statements. All inertial frames of reference are equivalent, and laws of physics are the same in all inertial frames of reference. The non-inertial frame of reference, the laws of physics, Newton's laws of physics cannot be applied. Yes, with some correction. The correction is the person inside, second law ki baat kar raha hoon, the person inside feels that there is a force on the object in the opposite direction, although there is no real agent acting on the person, on the object. The force which is observed by the person in the non-inertial frame of reference does not have real agent. That's why it's called pseudo force or fictitious force. Now let me give you some examples. Example number 1. You see here, maybe it is a truck or a car accelerating in the forward direction, and there's an object on this. Object is on this, and this is frictionless. ये smooth surface है.
तो अब मुझे I will solve a problem. You see, I will solve a problem. I want to find this free body force diagram, free body diagram of this object of mass m. For a person outside with velocity 0, ground frame of reference, or this may even be moving with constant velocity or v constant. Rest and constant velocity are the same, and there is a person here. For this person, I will again make the free body diagram for this object. For this person, for accelerated frame. Accelerated frame is this. It is itself an accelerated frame. Yeah. I want to solve the problem for this person. I want to solve the problem from this person. For this person, I will write things here, and for this person, inside person, I will write things here. Have a look. पहले ये object है, ये object है. मैं इसे पूछ रहा हूँ कि what are the forces on this object? He will say one force is mg downwards, and other force is mg and normal reaction upwards. I will ask him what is net force in the y direction. He will say n minus mg and also equal to 0 because they are equal. N is equal to mg, they are equal. And I will say what is the acceleration. He will say 0. I will ask him what is fx. He will say there is no force in the x direction. So this is the observation for this object for this person. So simple. He will say there is an upward force, normal direction, downward mg, and he will say this n is equal to mg. He will say it is acceleration is 0, and he will say force in the x direction forward is 0 because there is no, it is a smooth surface, and smooth surface means there is no friction on this object due to the track. And now let me solve the same problem for this person. What is it is free body diagram for this person? Accelerated frame. Moving, accelerating forward. In this person accelerating forward. He will not dispute about real forces. उसके लिए भी real forces है. Real forces तो हमेशा हर किसी के लिए होता है, चाहे वो accelerated frame में हो या inertial frame में हो. First of all, he will say force is mg downwards and normal reactions upwards. In addition to these two forces, this person will say that there is a backward force opposite to his acceleration. How much mass इसका और acceleration इसका. So now I ask him what is Fy. He will say 0 because this is equal to this. I will say what is Fx. He will say minus ma. I will ask him what is the acceleration a dash of this object. He will say there is a net force in the x direction. He will say minus ma, that is this force, divided by mass. M gets cancelled, a prime is equal to minus a. So this person will say that it is accelerating backwards. ये देखो, ये मैंने सारा क्लियर कर दिया. ये देखो, ये भी और ये भी. इसके लिए ये रेस्ट में है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन 0 है, द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन भी 0 है इस पर्सन के लिए आउटसाइड. लेकिन इसके लिए जो अंदर वाला पर्सन है उसके लिए ये दो फोर्सेस तो है ही है. रियल फोर्स आर ऑलवेज देयर फॉर इनर्शियल एंड फॉर नॉन इनर्शियल. तो ये रियल फोर्सेस तो है ही, बट इन एडिशन टू दीज रियल फोर्सेस ही विल फील there is another force on this object in the backward direction opposite to his acceleration. How much ma? So therefore there is a net force on this, that is this. ये तो cancel हो गए. Net force is Fy is obviously 0, Fx that is minus ma this way, and for that reason he will say there is an acceleration. How much? A dash equal to minus a. मतलब ये खुद accelerate आगे की ओर हो रहा है, इसको लगेगा ये पीछे की ओर इसका acceleration है. ये दोनों ये कर लो, कंपेयर करो दोनों चीजें. ठीक. सेकंड, there is a lift here, let me suppose, and a person is in the lift
right? Person is in the lift and the lift is accelerating upwards. ऊपर की ओर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो मुझे इसका वेट चाहिए. आई वॉन्ट टू फाइंड द वेट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट. मगर आपको जानना चाहिए कि जो पर्सन का वेट है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. द वेट ऑफ द पर्सन इज जस्ट नॉर्मल रिएक्शन. जैसे आपको जनरली आप कहते हैं कि वेट इज mg, वो तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, वेट इज mg इज डाउनवर्ड्स, वो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो जाता है, तभी तो आप कहते हैं कि वेट इज mg. लेकिन हर जगह नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता है. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एवरी टाइम यू से व्हाट इज वेट mg. भाई mg is not directly weight, it is the normal reaction which is weight, but n normal reaction happens to be equal to mg, that is why you say mg. आपको पहले नॉर्मल रिएक्शन कहना चाहिए फिर mg, लेकिन जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वो डायरेक्टली mg लिखते, तो इससे उनका एक मिसकंसेप्शन बिल्डअप हो जाता है जैसे वेट इज mg. वेट इज नॉर्मल रिएक्शन. अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन कोई देता है, कोई सरफेस, तो वो आपका वेट बनाता है. You understand my point? Okay. Now let me solve this problem for a person outside जिसका वेलोसिटी 0 है. ये वेलोसिटी 0 होने के साथ साथ मैं हमेशा लिखता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट भी, बिकॉज वेलोसिटी 0 एंड वेलोसिटी कांस्टेंट इज द सेम. आई हैव बीन रिपीटिंगली टेलिंग यू दैट. एक तो मैं इसके लिए ये सॉल्व करूंगा. दूसरा, ये जो अंदर बैठा है, अगर दूसरा आदमी अंदर बैठा है उसको मैं कहूंगा इसका वेट क्या है, उससे भी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा. ठीक. आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन, आउटसाइड पर्सन. आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर पर्सन इनसाइड, दैट इज हियर, जिसका एक्सेलरेशन हो रहा है. एंड बोथ शुड गिव मी द सेम आंसर. आंसर शुड नॉट बी डिफरेंट, आंसर शुड बी द सेम. द वेट ऑफ द पर्सन observed by this ground observer and the weight of the person observed by the observer inside the lift himself, or the weight of the person observed by the person himself. खुद ही अपना वेट ऑब्जर्व कर रहा है. मुझे यहाँ ये और एक आदमी रखने की जरूरत नहीं है. ये खुद ही बताएगा मेरा वेट क्या है. खुद मीन्स ये और ये एक्सेलरेट कर रहा है, खुद ऊपर के और एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक. अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए इसके लिए इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. चलिए, एक तो mg नीचे की ओर, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, और सिस्टम का एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की ओर. ये लगाइए फॉर्मूला, लेट हिम अप्लाई द फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma. लेट हिम, व्हाट इज F? Force is resultant force, this one. This is the external force. What is that? N minus mg, that is equal to ma. ठीक. N minus mg is equal to m, mass of this person, into this acceleration. तो n किसके बराबर? m a plus g. ये हो गया वेट of a person inside the lift which is accelerating upwards, and this weight has been observed by a person outside. अभी आपको पता चलना चाहिए कि weight of a person inside the lift which is accelerating upwards against gravity, his weight is more. पहली बात तो यही है, उसका weight अच्छा खासा बढ़ जाता है. Because generally on the surface of the earth what is weight? mg, but here it is a plus g when you are accelerating up against gravity. ठीक. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. सपोज द लिफ्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड्स, व्हाट इज द वेट? द वेट शुड बी सेम एज mg, बिकॉज रेस्ट एंड कांस्टेंट वेलोसिटी इज द सेम. व्हाटएवर हैपेंस एट रेस्ट, सेम शुड बी हैपनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? बिकॉज inertial frames of reference are the same. If the person is moving in the lift with moving upwards with a constant velocity of 10, weight is mg. If he is moving up with a constant velocity of 20, weight is the same as mg. Constant velocity is the same. Inertial frames of reference will give the same answer, but acceleration will give a different answer. Now, by the way, अगर ये a है ना, अगर ये 0 कर दो तो mg हो गया, मगर a0 means velocity constant. अब जरा ये देखो, ये है the person
पहले इस पर्सन के लिए इनसाइड जो है, इसके लिए तो रियल फोर्स तो है ही mg, नॉर्मल रिएक्शन तो है ही, बिकॉज दे आर रियल फोर्सेस. इन एडिशन टू दीज फोर्सेस देयर इज वन मोर फोर्स, क्योंकि ये खुद ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके लिए और एक फोर्स है नीचे की ओर, दैट इज ma. इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, अपोजिट टू हिज एक्सेलरेशन. अब मैं इसको कहता हूं कि इस पर नेट फोर्स क्या है, ये कह रहा है जीरो है, इक्विलिब्रियम में है. मैं कहूंगा व्हाई शुड दिस बी इक्विलिब्रियम फॉर यू, ही सेज इट इज विद मी, इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, इट इज एक्सेलरेशन इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू मी बिकॉज वी आर टुगेदर. ये आदमी कहेगा वी आर टुगेदर, तो इस आदमी के लिए इस पर नेट फोर्स जीरो है. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. इस आदमी, हाँ इसके लिए ये एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है इसके लिए, लेकिन इसके लिए ये तो सामने पड़ा है और ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, मेरे सामने ही है. अगर एक बस है एक्सेलरेट कर रहा है, बस में जो भी पैसेंजर्स है उनका एक दूसरे के लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है, relative acceleration, because everybody is moving with an acceleration, therefore the relative acceleration of one person with respect to other person in the bus is zero. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सन इनसाइड है, इट इज एन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम इटसेल्फ, ये इस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम में है. तो अब ये पर्सन भी न्यूटन्स लॉ ही लगाएगा, मगर ये करने के बाद. तो बताइए अब ये इक्वेशन क्या लिखेगा इसके लिए, ये लिखेगा n ऊपर इज इक्वल टू ma प्लस mg, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इक्विलिब्रियम में है विद रेस्पेक्ट टू दिस. ये कहेगा इस पर कोई फोर्स ही नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है, मेरे सामने है, और इसका एक्सेलरेशन मेरे लिए जीरो है. अगर एक्सेलरेशन इसका जीरो हुआ इसके लिए, तो समझ लो कि इक्विलिब्रियम हो गया. तो n इज इक्वल टू व्हाट, ma प्लस g, अगेन द सेम आंसर. He gets the same answer by using a pseudo force. So he uses the Newton's law, but after some correction, after observing there is a backward force, fictitious force. लेकिन आपने इसको यहाँ पर ये समझ ले लो आप, समझो आप कि जो वेट होता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन नंबर वन, और वेट इज डिफरेंट व्हेन यू एक्सेलरेट अपवर्ड्स. It increases, your weight increases, and obviously it should decrease if you accelerate downwards. But I say accelerate downwards, I say accelerate upwards. I don't say moving upwards or downwards. Acceleration in motion is different. There may be a lift moving upwards, but acceleration downwards. There may be a system accelerating downwards, moving upwards. There may be a system moving downwards, acceleration upwards. वो possible है. जब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन अपवर्ड, जब हम कहेंगे तो आपके जहनों में शायद यही आता है इमीडिएटली, क्विकली, बिकॉज द माइंड इज वेरी क्विक टू पिक अप मिसकंसेप्शंस. माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट पिक्स अप मिसकंसेप्शंस वेरी क्विकली. जब मैंने कहा एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो आपके जहन में आया सबकॉन्शियस माइंड, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है. वो गलत बात है. ये एक्सेलरेट, व्हेन द टीचर सेज he stresses it is accelerating upwards. मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं. सपोज ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है मोशन, लेकिन इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, मूविंग अप. ये देखो मूविंग अप, वेलोसिटी अप है, मगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. समझो फोर्स नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर. इट इज मोशन अप, एक्सेलरेशन डाउन. और जाने दो, छोड़ो. अगर एक बॉडी ऊपर की ओर आपने थ्रो किया यूं वर्टिकली, तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, लेकिन मोशन तो ऊपर है. तो इनको मिक्स मत करो, डोंट मिक्स देम अप. ओके, अब मैं चूंकि मैंने ये एक्सेलरेशन अपवर्ड्स कर दिया, और मैंने आपको ये भी कर दिया और साबित भी किया कि व्हेन द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, जो भी उस सिस्टम में है उनका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस इंक्रीज. बी केयरफुल, वेट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस. थर्ड पॉइंट, चलो मैं डाउनवर्ड के लिए भी दिखाऊंगा. थर्ड, चलो फिर से प्रैक्टिस, एक छोटा सा प्रैक्टिस होगा. ये है पर्सन, इस पर तो अंदर भी एक आदमी रख दो और बाहर भी एक आदमी हम रखेंगे. इसका वेलोसिटी ज़ीरो कर देंगे, और अब के बाहर इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर. बताइए इसके लिए इस पर क्या फोर्स है. यूं
इसके लिए फोर्स है एक तो डाउनवर्ड से mg, नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस देगा अपवर्ड्स, और सारा सिस्टम जो है नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। बताइए इक्वेशन क्या लिखेगा, ये वाला न्यूटन लॉ लगाएगा सीधे सीधे, F इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज F? फोर्सेस को काउंट करो और रिजल्टेंट निकालो, mg माइनस n। अब सपोज आप अगर कह रहे हैं कि वाई डोंट आई राइट n माइनस एम जी, एक्सेलरेशन नेट नीचे की ओर है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए टू क्रिएट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ एम जी माइनस एन लिखा, और अर्लियर केस में मैंने n माइनस एम जी लिखा था। तो इट इज़ एम ए, वट इज़ n? n इधर ये उधर, सो इट इज़ m g माइनस ए। ये है वेट, कम हो गया वेट। सो व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स इन ग्रेविटी, यू आर एक्सेलरेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अब जो है ये नॉर्मल रिएक्शन कम प्रोड्यूस करेगा। और एक केस में नॉर्मल, जब मैं अभी बताऊंगा फ्री फॉल में क्या होगा, चलो वो दूसरा चीज़ होगा। एनीवे, सो अब मैं इसके लिए करूंगा इससे, ये देखो इसके लिए ये कहेगा डाउनवर्ड mg है ज़रूर, और नॉर्मल रिएक्शन भी है, लेकिन साथ में कहेगा ये खुद तो एक्सेलरेट नीचे की ओर कर रहा है ना, ये वाला, ये पर्सन बी नीचे की ओर ही एक्सेलरेट कर रहा है जो मैं ऑब्जर्वर बना रहा हूँ। ये कहेगा इस पर एडिशनल फोर्स है ऊपर की ओर, कितना मास इसका, और ये फॉर हिम देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस पर्सन अपोजिट टू हिज एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वजह, because his acceleration is downward, this one, and he will create the force in the upward direction on this person, that is pseudo force opposed to this acceleration, his mass and acceleration but in the opposite direction। तो अब मैं कहूँगा ये जो उस पर्सन है इस पर नेट फोर्स क्या है, ये कहेगा भाई नेट फोर्स क्या है, मेरे सामने ही तो है, कहाँ एक्सेलरेट होता है, मेरे सामने पड़ा है, there is no net force on him because for him there is no acceleration of this person for this person, the relative acceleration 0। तो ये इक्विलिब्रियम में हुआ सिस्टम for this। तो what he will write, he will write mg plus n ऊपर is equal to mg ma, sorry, ma। so what is n? n is equal to mg minus ma g minus a। Same answer. He is also applying Newton's law with a correction. ये भी Newton's law है कि when the force is net force is 0 or the system is balanced, downward force equal to upward force, वो भी Newton law ही है। Okay. Now चलो फोर्थ में करता हूँ ताकि आप, हाँ एक बात यहाँ ज़रूर है कि आप समझ लो ये, when something is accelerating downwards, his weight becomes lesser, his weight reduces because normal reaction offered by this lower surfaces decreases, it reduces। Be careful, right? just जो ये weight होता है, it is nothing but normal reaction। अगर आपका कहीं से normal reaction 0 हो गया सरफेस की वजह से, तो समझो your weight is 0। Okay, fourth point। चलो अब हमने इसमें किया है कुछ चीजें, मैं फ्री फॉल करता हूं, ये है लिफ्ट और इट फॉल्स विद ग्रेविटी, ये फ्री फॉल है, अनकंट्रोल्ड फॉल। A lift is there and it cuts, some cable cuts and it falls down like a stone. It's a free fall. Free fall is when a body falls only under gravity, that's a free fall। free fall is a very pleasant experience। You can talk to those people who, you can have the experience, or you can talk to those people who jump from the aircrafts before they open the parachute, they are weightless and they are enjoying that weightless nature। They are enjoying their weightless nature। Okay, now तो ये नॉर्मल, ओके, इसके लिए मैं देखता हूँ इसका वेट क्या है, वेलोसिटी इसका 0 है, ऑब्जर्वर है ये, तो ये पर्सन
ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर क्रिएट करेगा और mg नीचे की ओर, और सारे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स है। चलो इसके लिए ये पर्सन ऐसे और बेस ऐसे, mg नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। क्योंकि देखो आई रिपीटेडली टोल्ड यू दैट एक्सेलरेटेड फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम, उन दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए रियल फोर्सेस इंटैक्ट होते हैं, रियल फोर्स को लिखना पड़ेगा। They will not dispute about the real forces. For him, real forces are the same for both, जिनके एजेंट्स हैं। अगर अनरियल फोर्स कोई है विदाउट एजेंट, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम के लिए एक एडिशनल फोर्स होता है बॉडी पर, बस वही एक। तो अब क्योंकि ये नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है ये पर्सन, he will say there is an additional force upwards. How much? m और क्या, और ये g, ये अपवर्ड फोर्स है। ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ? ये इस वजह से प्रोड्यूस हुआ कि ये खुद भी नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, वो कहेगा इस पर ऊपर की ओर mg का फोर्स है, दिस वन। और आखिर में ये कहेगा ये रेस्ट में है, मेरे सामने है। इसका मतलब ये है कि इनको इक्वेट, पहले मैं यहां पर इसके लिए let me apply Newton's law, F is equal to ma. What is F? N minus mg. What is F? mg minus n is equal to m. What is A? That is g. mg cancels because both are positive on both the sides. Minus n is equal to 0. That means n is equal to 0. इसका मतलब ये जो सरफेस नीचे है इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा ही नहीं, ये तो फ्री फॉल कर रहा है। मतलब आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट कट्स, लिफ्ट भी नीचे जा रहा है, आप भी नीचे जा रहे हो विद द सेम एक्सेलरेशन। इसका मतलब लिफ्ट का जो नीचे वाला जो सरफेस है वो आपको नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई नहीं करेगा, इट विल नॉट प्रेस यू अपवर्ड्स। जब नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है तो वेट जीरो हो गया, वेट इज जीरो, यू आर वेटलेस। ओके, जरा यहां पर देखिए, यहां तो इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये इसके सामने ही है, तो इन सब फोर्स में इक्विलिब्रियम आ गया। तो n प्लस mg इज इक्वल टू नीचे वाला mg, mg गेट्स कैंसल्ड, सो n इज इक्वल टू 0। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि इन फ्री फॉल, when you fall under gravity, during the fall your weight is 0. During the fall your weight is 0. So you can write it down. In free fall weight is 0. In free fall weight is 0. अच्छा, आप जरा देखो और एक चीज इंटरेस्टिंग, और देखो मैं और आपको ये भी बताना चाहूंगा। Sometimes you feel that to solve a problem from inertial frame of reference is easy. Not always. Sometimes it is very easy to solve the problem in the accelerated frame of reference. Result तो same आते हैं, you get the same results. लेकिन accelerated frame of reference में mostly आपको equilibrium का equation लगाना पड़ता है, this is equal to this. क्योंकि इसके लिए सामने वाला ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, वो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाता है एंड यू गेट द सेम आंसर। इक्विलिब्रियम भी हमेशा नहीं आता है, मोस्टली मैंने कहा कि मोस्टली इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट हो जाता है तो आप उसका लिखते हैं इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। अच्छा चलो, और एक चीज इसी पर, फिफ्थ, मैंने एक इंक्लाइन ऐसे बनाया मैंने इंक्लाइन, और ये इंक्लाइन एक्सेलरेट आगे की ओर हो जाता है, मास m है कैपिटल M, ऐसे बनाता हूं मैं क्वेश्चन, और इस पर ये वाला मास है m। तो मुझे देखना है कि व्हाट शुड बी दिस एंगल थीटा, व्हाट इज एंगल थीटा। थीटा, सो दैट ऑब्जेक्ट जो है ये मास वाला ऑब्जेक्ट of mass m does not slide
ये जब यूं एक्सेलरेट करेगा, ये वेज जब यूं एक्सेलरेट करेगा, ये नीचे गिरेगा नहीं। तो अगर नीचे नहीं गिरेगा, ये थीटा कितना होना चाहिए? अगर ये ब्लॉक, ये जो छोटा ब्लॉक है इस बड़े वेज पर, क्या होना चाहिए? ये एक्सेलरेट नहीं, क्या ये थीटा होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक विल नॉट स्लाइड अलोंग द इनिशियल लाइन? ये हमारा क्वेश्चन। चलो मैं इसको कहूँगा, यार आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये वाला, इसको मैं इसी पर वेज पर ही रखूँगा। ये खुद भी एक्सेलरेट हो जाता है। इसको कहूँगा करो, इस मास को सॉल्व करो। पहले ये कहेगा रियल फोर्सेस जो है, वो ये भी कहेगा रियल फोर्सेस जो है, रियल फोर्स के बारे में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल फोर्स ये n है, नॉर्मल रिएक्शन, और mg है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अगर मैं इससे भी पूछता तो यही कहता, इससे पूछता तो यही कहता है भाई ये दो फोर्सेस है। लेकिन अब जब मैं इससे पूछता हूं, ये कहेगा ये फोर्स तो है ही है, ऑब्वियसली रियल फोर्सेस आर एनीवे रियल फोर्सेस, यू कांट डिनाई देम। ये कहेगा देयर इज एडिशनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज मास इसका और ए इसका, ये इसके इस ए के अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स मिलता है, दैट इज इसका मास और ये एक्सेलरेशन लेकर के एम ए will experience force opposite to this A. How much? ma. ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर का जो आगे की ओर होता है। ठीक, अब इन तीन फोर्स में, और ये जो बंदा यहां पर खड़ा है, ये कहेगा ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे सामने है, इस पर नेट फोर्स 0 है, ये कहेगा ये। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इन फोर्सेस का ये कंपोनेंट्स निकाल करके, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक, तो बताइए यहाँ से इसका कंपोनेंट क्या है? अगर ये थीटा है तो ये 90, ये भी थीटा हो गया, तो ये हो गया एम ए कॉस ऑफ थीटा, ये वाला। और ये कितना हुआ? एम ए साइन थीटा। इस एम ए के मैंने पीसेस कर दिए, अब एम जी के भी पीसेस कर दूंगा। यहाँ से आएगा एम जी साइन थीटा, ठीक, और यहां से आएगा एम जी कॉस थीटा। मैंने इसके 2 पीसेस कर दिए, मैंने इसके भी 2 पीसेस कर दिए। अब बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए फॉर दिस ऑब्जर्वर? एज सिंपल एज दैट। इस ऑब्जर्वर के लिए इसको क्या लिखा? इक्विलिब्रियम में है। he will say it is at rest for me because they are going together, it is not sliding down. देखो मैं क्या करता हूं, पहली बात ये है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? इन दो फोर्सेस के दरमियान, दिस एंड दिस। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, यस, एम ए साइन थीटा, ये वाला, और प्लस एम जी कॉस थीटा। तो लगे हाथ नॉर्मल रिएक्शन मिल गया हमें, लेकिन हमें थीटा निकालना है। क्या होना चाहिए थीटा? सो दैट इट विल नॉट स्लाइड डाउन। ठीक, तो अब बताइए और क्या, कौन सा इक्वेशन लिखेगा? ये तो लिखा दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज फॉर हिम दे आर इन इक्विलिब्रियम इन दिस डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट गो एक्सेलरेट इन द वाई डायरेक्शन फॉर दिस पर्सन। सो ही राइट्स वाई फोर्सेस आर 0, मींस दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस 2 फोर्सेस। एंड एडिशनल में क्या लिखेगा? एम ए कॉस थीटा, ये वाला फोर्स इस बॉडी पर, ये वाला फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। दूसरा इक्वेशन ये लिखेगा, फॉर बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम फॉर ए पर्सन हु इज एट द टॉप, यहां पर बैठा है, नॉट फिजिकली ही, वो कहीं और आप किसी पर्सन को वहां बिठाओगे, इट इज हाइपोथेटिकल। चलो it is just in imagination that you see that there's a person sitting there and he is writing the equations. M gets cancelled. What is A divided by this G is equal to tan theta, or theta should be equal to tan inverse A by G. ये है आंसर। अगर A दिया हुआ है
अगर ए दिया है तो what should be the relationship between A and theta? The relationship between this A and this theta should be A should be equal to G tan theta. ये भी आंसर हो. These things I wanted to do because last time जो मैंने लेक्चर आपको दिया था उसमें इतने ज़्यादा हमें एप्लीकेशंस हमने नहीं किए थे, इसलिए मैंने और एक लेक्चर इसमें दिया so that it completes inertial and non-inertial frames of reference. Very important. Very important to understand it. It is physics. I thank you for watching my lectures, but I again ask the students to subscribe to my channel, Tantrisar Physics Classes. Thank you.